टॉर्क को हमने R लिखा था cross आर P. क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम को R cross P. आर क्रॉस पी। सो हमने दोनों में रिलेशन निकालना है। लीनियर मोमेंटम और फोर्स में रिलेशन क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ। And total change in linear momentum by time equal to force. Rate of change of linear momentum is equals to force. F is equals to dp by dt. So similar relation इसमें भी आएगा. So this is the relation between torque and angular momentum. So you can write for a body moving with linear momentum p. The body moving with linear momentum p having position vector r
So you can consider body having linear momentum p and position vector r. Its angular momentum is given by. L is equals to R cross P. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? dl by dt की वैल्यू क्या होगी? It's differentiation of R cross P. So we can say इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R into differentiation of P plus differentiation of R into P. dp by dt क्या होता है? dp by dt is rate of change of linear momentum. force. अभी तो बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ F is equals to dp by dt. dr by dt क्या होता है? ये क्या बन गया? R cross F. टॉर्क. इसकी वैल्यू क्या होगी? V cross P की. P क्या है इसमें? Linear momentum. linear momentum. And V is velocity. Momentum की डायरेक्शन क्या होती है? Same as velocity. That means ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल वेक्टर्स है. पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? Zero. जीरो. Zero. तो A cross B is AB sin थीटा. तो वेलोसिटी और मोमेंटम पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये जीरो हो जाएगा. मतलब dl by dt is equals to torque. As V and P are parallel vectors. और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. Implies or you can say that dl by dt is equals to R cross F, या tau. This is similar to जो force और linear momentum में relation था. Force को हमने लिखा था it's rate of change of linear momentum, torque is equals to rate of change of angular momentum, and tau here represents external torque. So you can write that is external torque acting on the system is equals to rate of change of angular momentum. Clear है ये? Yes. अब मैं इसको दूसरे वे में भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? सर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व. तो इसमें भी मैं कह सकता हूँ अगर टाउ जीरो है तो dl by dt जीरो है, और dl by dt जीरो कब आएगा? सर जब जब L मोमेंटम कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट है. तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेज दैट if no external torque acts on the system, angular momentum of the system will be conserved. तो L कंजर्व रहेगा. पहले यहां तक लिख लो फिर उसको लिखते हैं. यहां तक क्लियर है ना ये सब? Then you write law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum.
Law of conservation of angular momentum. It states that if no external torque acts on a system, angular momentum of the system is conserved. If no external torque acts on the system, angular momentum of the system is conserved. Angular momentum of the system is conserved. That is, if tau is equals to 0, it should be clear it's external torque. L is equals to constant. Torque and angular momentum are related as इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं because angular momentum is I omega. इसके प्रैक्टिकल यूज देखो. I omega is constant. कोई एग्जाम्पल. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, why swimmers curl their body while jumping from a height? जब वो गेम्स में आपने देखा होगा, जब उनका जंपिंग इवेंट होता है तो जब वो हाइट से जंप करते हैं वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेते हैं. उसका बेनिफिट क्या होता है? या बिल्ली जब छलांग मारती है, बिल्ली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है. Why swimmers curl their body and why cat stretches? सर जब कर्ल करते हैं तो ज्यादा रोल कर सकते हैं, स्पीड ज्यादा. जब कर्ल कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अब नॉर्मल मतलब स्केटिंग में देख लो, जैसे फिगर स्केटिंग जो अगेन इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, अगर आर्म स्ट्रेच्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, या आर्म्स को मैं पास ले हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? जब स्ट्रेच्ड है, बिकॉज मास इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस. तो जब आप पास ले आओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो घूमने की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी. अगर आप गोल गोल घूम रहे थे, या अगर आप गोल घूम रहे हो, आर्म्स को पास रखा हुआ, अगर आप आर्म्स को स्ट्रेच कर दोगे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी. बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी. कैट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, बिकॉज स्ट्रेच करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो हवा में घूमेगी नहीं नॉर्मली. नहीं तो अगर कोई हाइट से जंप करे उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली घूमने लग जाती है. क्या आपने अगर किसी को हाई राइज बिल्डिंग से गिरते देखा है, तो कोई भी बिल्डिंग से ऐसे सीधा नहीं गिरता, वो ऐसे गिरता है, घूमती है उसकी बॉडी जब नीचे जा रहा होता है. ऐसा क्यों? घूमने क्यों लग जाती है बॉडी? आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा डेंस पार्ट कौन सा है? हेड. पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए अगर आप सीधे भी जंप मारोगे, अगर ये हेड है, हेड नीचे की तरफ आएगा.
to minimize the potential energy. हेड नीचे आएगा, इनर्शिया के कारण रुकेगा नहीं, मतलब ऐसे घूम के नीचे आया फिर यहाँ पे रुका नहीं, फिर वो घूमना ही शुरू हो गया, तो कोई ऐसे सीधा जंप नहीं कर सकता। नॉर्मली आपने गेम्स में भी देखा होगा, जब उन्होंने कर्ल नहीं करना होता वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर लेते हैं कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच कर लेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के एंगुलर वेलोसिटी कम करते हैं। सो दीज आर बेसिक एग्जांपल्स कि स्केटर्स को कहते हैं कि स्केटर्स अपने आर्म्स को पास ले आते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। या अगर मैं आपसे पूछूं आइज ऑन पोल्स ऑफ अर्थ मेल्ट, तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अगर पोल्स पे आइस मेल्ट करती है तो कम हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर मेरे पास अर्थ है, से मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ की, यहाँ पे जो आइस थी वो मेल्ट कर गई इस पॉइंट पे, जो पोल्स पे आइस थी, तो ये पानी यहीं रहेगा या स्प्रेड कर जाएगा? स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करेगा, रेड कर जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, एक्सिस से दूर चला गया मास, एक्सिस से दूर चला गया मास, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बढ़ बढ़ गया, गया, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर कम पोलराइज हो में। जाएगा। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंप्लाइज कि इस फॉर्मूला का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे स्कूल के न्यूमेरिकल्स में, कि आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, या जैसे वो कई बार न्यूमेरिकल देते हैं एनसीईआरटी में कि अगर अर्थ का मास सेम रहे और अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होगी? अर्थ का मास सेम रहे बट अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए, अर्थ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर है ना, तो movement- 2/5 mr²। मैंने कहा मास सेम रहा और रेडियस हाफ हो गया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया, कम हो गया, हो गया, 4 4 टाइम्स। टाइम्स, 1/4 हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया। आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर आई 1/4 हो जाएगा तो ओमेगा कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई, तो अर्थ 4 टाइम फास्टर रोटेट करिए। अभी दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरी करती है, अगर 4 टाइम फास्टर करेगी तो कितनी देर में कर लेगी? 6 6 आवर्स। आवर। तो दैट विल बी ड्यूरेशन ऑफ द डे। कि अगर अर्थ का रेडियस हाफ रह जाता है तो अर्थ को 4 टाइम फास्टर रोटेट करना पड़ेगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। 4 टाइम फास्टर रोटेट करेगी तो ड्यूरेशन ऑफ द डे 24 आवर्स की जगह 6 आवर्स रह जाएगा। क्लियर है कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? ठीक है, सो राइट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये एग्जांपल नोट्स में दिए हुए हैं, प्रिंटेड में से पढ़ लेना बिकॉज नोट्स में दिए हुए एग्जांपल सारे। सो यू कैन राइट a rigid body, कौन सी लूं, मतलब स्फीयर लें, डिस्क लें, रिंग लें, क्या लें? rigid body in the form of sphere ले लो। a rigid body in the form of sphere is set into motion on a rough horizontal surface, is set into motion on a rough horizontal surface with linear speed linear speed v naught, with linear speed v naught. With linear speed v naught in forward direction at time t is equals to 0. In forward direction at time t is equals to 0. After what time? After what time? Will this, after what time will the slipping finally stops and the body starts pure rolling? Find the linear speed and the body starts pure rolling. Find the linear speed of the body when pure rolling starts.
सर आफ्टर व्हाट टाइम के बाद रिपीट कर दो. After what time the body slipping stops and the body starts pure rolling? Find the linear speed at that instant. हमें ऐसे दिया एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, जिसको लीनियर स्पीड दी है v नॉट. और इसको सरफेस पे रख दिया. अब ये रोल नहीं कर रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, ऐसे सीधा फेंका हमने फेंका तो ऐसे ट्रांसलेट कर रहा था. हमने बताना है जब ये रोल करना शुरू हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी. मतलब थोड़े टाइम के बाद वी विल ऑब्जर्व कि ये रोल करने लग गया. तो जब ये रोल कर रहा है मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा. v is equals to r omega when pure rolling starts. तो हमने बताना है कब. ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल सारी प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी गुड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम. हमें दिया रफ सरफेस है और मैंने इसको लीनियर वेलोसिटी दी है. पहले हम इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट पे, T1 पे. रिलेटिव टू ग्राउंड ये पॉइंट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है. आगे. आगे जा रहा है. फ्रिक्शन का रोल क्या होता है. फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन. अगर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में पीछे एक्ट करेगी. इतना क्लियर. ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक है. काइनेटिक. काइनेटिक. बिकॉज रिलेटिव मोशन है ना दोनों सर्फेसेस में, तो ये काइनेटिक है. काइनेटिक फिक्स्ड होती है या सेल्फ एडजस्टिंग होती है. फिक्स्ड. फिक्स्ड होती है. और इसकी वैल्यू कितनी होगी. u1 value is coefficient of kinetic friction. आगे जा रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग रही है, ये वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी. कम होगी. कम हो जाएगी. अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, अच्छा r कितना है इस केस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो mg. बिकॉज फ्री बॉडी ऐसे ही बनेगा ना, mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, r एक्टिंग अपवर्ड्स. तो रिटार्डेशन कितनी होगी. माइनस mg. फोर्स ओवर मास. मैं पूछूं आपसे, अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी तो आफ्टर टाइम t कितनी होगी. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना. v नॉट Constant माइनस म्यू gt. v नॉट माइनस म्यू gt कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लग जाएगी. तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इसको ऐसे लिख के v नॉट माइनस म्यू gt. यहां तक देखो ठीक है सबको ये कंसेप्ट. अभी तक मैंने रोटेशन का कुछ नहीं किया. दिस इज ऑल काइनेमैटिक्स. अब एक काम करते हैं, इस फ्रिक्शन के कारण जो स्फीयर पे टॉर्क लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी. क्लॉकवाइज घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज. अबाउट सेंटर. क्लॉकवाइज.
clock, टॉर्क लगेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। Yes. अगर पहले मैं पूछूं टॉर्क लगेगी कितनी, फ्रिक्शन के कारण है तो आर इंटू Mu1. एफ। एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी, लीनियर में था फोर्स ओवर मास, इसमें टॉ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी कौन सी ली थी हमने, Sphere. तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। तो अल्फा कितना आ गया, यू गेट इट एज m कैंसिल हो गया 5 म्यू जी बाय 2r। 2R. अच्छा, इसकी कोई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, No, sir. No. नहीं थी। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन है ये ऐसे घूमना शुरू हुआ तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी Yes, sir. कितनी, जैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट कितना था, ओमेगा नॉट वाज 0. 0. अल्फा की वैल्यू 5 mu g per 2R. आफ्टर टाइम t ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये लीनियर वेलोसिटी आ गई। When pure rolling starts, v should be equals to r omega. v naught minus mu gt, r omega कितना हो जाएगा, तो v naught कितना आ गया, तो कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, वी से इट्स 2/7 अपॉन म्यू जी। एक तो ये पूछा था, दूसरा पूछा था जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट माइनस म्यू जी टी। टी की वैल्यू पुट करूं अगर मैं, म्यू जी कैंसल, v नॉट माइनस 2/7 v नॉट, तो क्या आ गया, 5 v naught by 7. देखो दोबारा से एक बार क्या किया हमने, मैंने बॉडी को बिकॉज ट्रांसलेट किया था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आगे जा रहा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, फ्रिक्शन लीनियर स्पीड को कम करती जाएगी, इसको कम करती जाएगी, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी नहीं है उसको बढ़ाना शुरू कर देगी, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हमने जनरल फॉर्मूला लगाया, पहले हमने वेलोसिटी निकाल लिया आफ्टर टाइम t, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया आफ्टर टाइम t, और फिर v इज इक्वल टू r ओमेगा करके t की वैल्यू निकाली। समझ में आया कैसे किया, सर ये लास्ट में बता दो v इक्वल टू r अल्फा से। कहाँ पे, सर ये v यहाँ, इक्वल टू r। यस सर। हाँ तो v की वैल्यू v नॉट माइनस म्यू जी टी, r ओमेगा, ओमेगा हमने निकाल लिया, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये जो आपने v नॉट थी ये तो आपने फाइनल वेलोसिटी नहीं मतलब फाइनल थोड़ी ली थी, फाइनल नहीं ली थी, आफ्टर टाइम t ली थी, और ये भी आफ्टर टाइम t लिया। ओके सर। मैं इसके डायरेक्ट ऑपोजिट क्वेश्चन दे सकता था आपको, पहले दूसरा भी समझ लो फिर दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अगर मैं आपको कहता से ये बस ऐसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैंने एक स्फीयर को एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घुमा के सरफेस पे रख दिया बस, मतलब मैंने इसको लीनियर वेलोसिटी नहीं दी, मैंने इसको सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी दी।
मतलब पहले वाले से डायरेक्ट ऑपोजिट हो गया। पहले था लीनियर वेलोसिटी दी थी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी थी। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूँ, लीनियर नहीं दे रहा, मतलब ये रोटेट कर रहा था। तो यहीं रोटेट करता रहेगा या आगे चला जाएगा? सर आगे जाएगा। आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो थोड़े टाइम के बाद जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो ये मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं आपसे पूछूं कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी? मतलब कितने टाइम के बाद v इज करो r ओमेगा हो जाएगा? अब ध्यान से देखना सारा। अगेन यू विल फोकस ओनली एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे को किसी पॉइंट को नहीं देखना, सिर्फ इस पे ही फोकस करना। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये जो पॉइंट है ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? पीछे। पीछे जा रहे हैं। तो ये सरफेस के रिलेटिव पीछे जा रहा है। फ्रिक्शन ने इसको अपोज करना है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? आगे आगे। तो जब आप बॉडी को रोटेट करके छोड़ोगे तो फ्रिक्शन उस पे आगे को लगेगी। ये ऐसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शो किया मैंने? क्लॉकवाइज शो किया। इसके कारण टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक्सेलरेटिंग टॉर्क है या रिटार्डिंग टॉर्क है? रिटार्डिंग। रिटार्डिंग। क्योंकि ये ओमेगा को अपोज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है ये उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है ना। तो ये एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा या कम कर देगा? कम कर देगा। इसके कारण ये स्फीयर जो है एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा? स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। 0। मैंने अभी इसको इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं दी थी। तो जब आगे की तरफ फोर्स लगेगी तो फाइनल वेलोसिटी v। और v की वैल्यू कितनी? 80। ये म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन कितनी? म्यू जी। ओजीडी। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट माइनस टॉ बाय आई इंटू टी। माइनस लिया बिकॉज अल्फा की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट। यहाँ से ओमेगा की कुछ वैल्यू आ जाएगी अगेन टॉ और आई पुट करके, और उसके बाद क्या करेंगे जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, फिर टी आ जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? अगर आप ट्रांसलेट करके छोड़ते हो तो फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को कम करता है, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है। अगर आप रोटेट करके छोड़ोगे तो एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, लीनियर को बढ़ाएगा। दोनों केसेस में when body starts pure rolling तो v should be equals to r omega। अब इसमें और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, पहले मान लो ये फ्रिक्शन कोई वर्क डन करेगा? Will there be any work done by friction? इस पे मेरे को बताना कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, और कौन सी फोर्स लग रही है? वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, आगे जा रहा है। वेट के कारण वर्क डन होगा? नो नो। नॉर्मल रिएक्शन के कारण? नो क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस। सेम जगह पे। परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। तो इसके कारण वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के कारण। यस। तो वो निकालना हो तो कैसे निकालें?
अगर मेरे को फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? सर जितनी फ्रिक्शन लग रही है उसको जितना वो डिस्प्लेस किया टोटल। फिर एस भी निकालोगे पहले? अब निकालोगे प्योर रोलिंग कहां तक हुई है? एस तो पता नहीं अभी। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी वर्क एनर्जी, Kinetic energy. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ट्रांसलेशनल रोटेशनल या दोनों? ट्रांसलेशन। Translation. कितनी है? Half mv naught square. हाफ एम ए नॉट स्क्वायर। इधर Half I omega square plus half mv square. दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बस यही तो करना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। पहले सिर्फ इसको देखो, ये न्यूमेरिकल समझ में आया मैंने कैसे किया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस एग्जाम में वो बॉडी बदलते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है एग्जाम्स में, ये वाला या इससे अगले पे जो किया हमने, वो दोनों में से कोई एक। मैंने स्फीयर लिया, वो हॉलो स्फीयर ले सकते थे, डिस्क ले सकते थे, रिंग ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। बॉडी बदलने से बदलेगा क्या? सिर्फ ये वाली वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बाकी तो कहीं यूज ही नहीं हुआ कि कौन सी शेप है। सिर्फ शेप का यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो रहा है। तो जो भी बॉडी देंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 फॉलो होता, तो 2/3 रिंग होता, तो mr² डिस्क होती, तो हाफ mr² सिलेंडर, तो हाफ mr², हॉलो सिलेंडर तो अगेन mr²। सिर्फ ये वैल्यू बदलनी है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। फ्रिक्शन ने लीनियर वेलोसिटी को कम करना है, रोटेशन को बढ़ाना है, और जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो v हमेशा r ओमेगा के इक्वल ही होता है। क्लियर सबको? सर डायग्राम ये बनाओ। वाला क्यों लास्ट बताना कि रोटेशन रोलिंग में भी इक्वल टू आर। रोलिंग होती क्या है? हम प्योर रोलिंग किसको बोलते हैं? सर जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट Rotation दोनों। plus translation. प्योर रोलिंग, प्योर वर्ड। प्योर रोलिंग क्या होती है? अच्छा, अगर मेरे को ये बताओ, मेरे पास एक बॉडी है, स्फीयर ही ले लो चाहे, वो ट्रांसलेट कर रहा है, विद वेलोसिटी v। अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी या डिफरेंट होगी? इन दोनों की डायरेक्शन से डिफरेंट। ट्रांसलेट मतलब ऐसे चल रही है बॉडी सीधा, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, डिफरेंट होती है? सेम सेम। फिर मेरे पास एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा, इसके नीचे वाले पॉइंट की आर ओमेगा पीछे की तरफ। मेरे को बताना, ये जो पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करता हूँ हमेशा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है? Opposite. ये जीरो कब होगी? सर जब v और r ओमेगा से दैट्स कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे होता है। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलता रहेगा, बिकॉज बॉडी जब रोल करेगी पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो भी नीचे आ जाएगा उसकी स्पीड जीरो होगी, वो रिलेटिव टू सरफेस मूव नहीं करेगा। इसलिए हम लेते हैं जब प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। आया समझ? यस। सिर्फ डायग्राम बनाओ, मैं पहले Can you please repeat? सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखो। ट्रांसलेशन के कारण इसकी वेलोसिटी राइट साइड की तरफ कितनी है? v। रोटेशन के कारण लेफ्ट साइड की तरफ r ओमेगा। तो नेट वेलोसिटी निकालनी है तो इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? डायरेक्शन ऑपोजिट है तो Track. मतलब रोलिंग का मतलब
ये ना इन दोनों का वेक्टर सम, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी v माइनस आर ओमेगा। प्योर रोलिंग में दिस शुड बी 0। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, वो तभी होगा जब v और r ओमेगा इक्वल होंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें अगर प्योर रोलिंग नहीं दिया होता फिर कैसे करते, सिर्फ रोलिंग कर ही दिया नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। फिर तो कोई भी टाइम हो सकता है, अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो सारा बीच में यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे प्योर रोलिंग नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे? वो तो फिर जितने मर्जी आंसर निकालते तो। आपने जैसे इसमें आंसर निकाला 5/7 v0 और 5/7 v0 के बीच में कुछ भी निकाल दोगे तो भाई वो आंसर हो जाएगा, और वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके सर। सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लिया सबने? So then when body is Yes, given, sir. when body is given translational velocity, when body is given translational velocity v naught, when body is given translational velocity v naught, the point of contact, the point of contact is moving to the right as shown in figure. The point of contact is moving to the right as shown in figure. Relative to the surface, point of contact moves to the right as shown in the figure relative to the surface. The frictional force will oppose. The frictional force will oppose relative motion. Frictional force will oppose the relative motion between the frictional force will oppose relative motion between the surfaces. Frictional force will oppose relative motion between the surfaces. Therefore, friction acts towards left. Frictional force acts towards left parallel to the surface. Frictional force acts towards left parallel to the surface. This frictional force will decrease the linear speed and torque due to frictional force will increase. Torque due to frictional force will increase. The angular speed of the body till a stage is reached where pure rolling starts. Till a stage is reached where pure rolling starts and V is equals to R omega. Till a So stage can you is repeat from body? till a stage is reached where pure rolling starts and V is equals to R omega.
Can say for linear motion. So 5/7 B naught. इसमें देख लेना, कुछ नहीं आ रहा समझ तो मेरे से पूछ लो. कोई डाउट है तो इसको पूछ लो, एक बार ध्यान से देख लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में कि कैसे किया. और मेरे को इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड बता सकते हो? अगर मेरे को ऐसे नहीं करना, कोई और मेथड हो सकता है? मैं किसी और मेथड से इसको करना चाहूंगा अगर. ये आ गया समझ?
काम करते हैं, यही डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ. अगर मैं इस पॉइंट को मानूं एक P, इस स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, R क्रॉस P लूं, I ओमेगा लूं या दोनों का सम लूं? इस इनिशियल पोजीशन में R cross P. R cross P. R क्रॉस P, बेसिकली R परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम. इसका मोमेंटम है कितना? R परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस हो गया, which is equals to radius. R परपेंडिकुलर तो रेडियस के इक्वल ही होगा, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? mv naught r. This R perpendicular is radius. Clear है? Yes, sir. अब इसकी प्योर रोलिंग शुरू हो गई. अब इसका R क्रॉस P I ओमेगा या दोनों का सम? दोनों Sum. का सम. तो ट्रांसलेशन के कारण और रोटेशन के कारण I ओमेगा मतलब ओमेगा कैन बी रिटन एज V. V by R. प्योर रोलिंग शुरू हो चुकी है तो ओमेगा इज V बाय R. क्या आया ये सॉल्व करके? MVR प्लस 2 by 5 MVR. टोटल कितना हो गया? 7 by 5 MVR. इनिशियल कितना था? MV. MV not R. B की वैल्यू कितनी आ गई? 5 by 7. 5 by 7 V not. यही आई थी वैसे भी. अगर ऐसे कर सकता था तो मैंने वो सारा मेथड क्यों बताया, ताकि आपको फील आए कि कैसे लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे एंगुलर वेलोसिटी सॉरी कैसे लीनियर वेलोसिटी कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्शन का रोल क्या है. मैंने इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया. टॉक नहीं लग रहा है इस पे? टॉक लग रहा है या नहीं लग रहा? मैंने अगर ये पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं तो फ्रिक्शन यहीं से पास करेगी, इसी पॉइंट से. तो अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हो तो टॉक ड्यू टू फ्रिक्शन 0 है. पहले जो हमने R क्रॉस F या म्यू mgr निकाला था वो किस लिए निकाला था? टॉक अबाउट म्यू mgr किस पॉइंट के अबाउट टॉक था? Point of contact. सेंटर के. सेंटर से फ्रिक्शन का डिस्टेंस R लिया था. दोबारा देखो वो डायग्राम एक बार. मैंने ये जो टॉक लिया है फ्रिक्शन म्यू mgr, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है इनटू R. बिकॉज अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये फ्रिक्शन है, तो R इंटू म्यू mg. बट अगर मैं इसी को ही ले लेता हूँ ग्राउंड को ही, तो R तो 0 हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बिकॉज फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो आप रिलेटिव टू ग्राउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, सेंटर के अबाउट नहीं कर सकते. बिकॉज टॉक अबाउट ग्राउंड 0 है, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 नहीं है. तो ऐसे रटना नहीं है किसी चीज को, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम को क्यों कंजर्व कर रहा हूँ. So this can be an alternate method
वेरी शॉर्ट, बट आपको इसमें पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो इतना सा सोल्यूशन था। पर अगर मैं इस सोल्यूशन के साथ आपसे पूछूं वर्क डन, वो निकाल सकते हो? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी ना कई बार अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। अगर वो बोले ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हम कर देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो पूछा रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसको आगे, नोट में लिख लो इसे। as linear velocity of the body is decreasing, as linear velocity of the body is decreasing and angular velocity of the body is increasing, and angular velocity of the body is increasing, therefore translational work done by friction will be negative. Therefore translational work done by friction will be negative. And rotational work done by friction will be positive. Mathematically, translational work done is equal to, mathematically translational work done is equal to final translational energy minus initial translational energy and rotational work done is final rotational energy minus initial rotational energy. दोनों निकाल दो, ट्रांसलेशनल वर्क डन कितना आ रहा है और रोटेशनल वर्क डन कितना आ रहा है। ट्रांसलेशनल वर्क डन निकालो कितना आया और रोटेशनल कितना आया। मेरे को आंसर बताना जब आ जाए। Translational work done comes out to be
minus 12 mv naught square by 49. Minus 5 mv naught square by Minus 12 mv naught square by 49. 12 mv naught square by 49. Okay. Similarly, second. अच्छा, इसमें वैसे आप एक और मेथड भी कर सकते हो. आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे शायद ध्रुव बता रहा था. आप वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी आंसर सेम ही आएगा. उसमें हम कर देंगे कि पहले आप s निकाल लेंगे. s विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. एंड अगर मैं उस मेथड से करूं, लाइक अगर हम ऐसे देखें, is yes आ गया, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज f into s. f is mu mg म्यू जी को कैंसिल कर दो. आप देखो तो वही फॉर्मूला बन गया, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन फाइंड रोटेशनल वर्क डन और लास्ट में लिख दो टोटल वर्क डन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वर्क डन. टोटल वर्क डन इज सम ऑफ translational and rotational work done. Next, right. दूसरा होमवर्क के लिए देता हूँ जो समझाया था. A sphere is given rotational velocity omega naught. A sphere is given rotational velocity omega naught and placed on rough horizontal surface. Placed on rough horizontal surface. Find linear speed of the body. Find linear speed of the body when it starts pure rolling. Find linear speed of the body when it starts pure rolling. When it starts pure rolling. Concept लिख लो. If body is given, डायग्राम भी बना लो, सॉल्व खुद से करके देखना. डायग्राम अगले पेज पे जो बनाया था ना उसको ड्रॉ कर सकते हो. डायग्राम बना लो, मैं कंसेप्ट लिखा देता हूँ. When body is given rotational speed omega naught, as shown in figure, the point of contact
with the ground is moving backward. Is moving backward. Therefore, frictional force Point of contact. is moving backward. Therefore, frictional force will act in forward direction. Therefore, frictional force will act in forward direction. This frictional force will increase linear speed of the body. This frictional force will increase linear speed of the body and decrease and torque due to friction will increase angular speed of the body. Torque due to friction will increase angular speed of the body. सर टॉर्क डिक्रीज नहीं करेगी? Torque due to friction will increase linear speed and decrease angular speed of the body. Increase linear speed and decrease angular speed of the body till a stage is reached when pure rolling starts. Till a stage is reached when pure rolling starts. And V is equals to R omega. V is equals to R omega. So next टाइम करते हैं इसके आगे. ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करके देखना. प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट बॉडीज के लिए ट्राई कर सकते हो कि अगर सॉलिड स्फीयर की जगह हॉलो स्फीयर है या डिस्क है तो क्या चेंजेस आएंगे. बट अदरवाइज कंसेप्ट सारा सेम है कि रोटेट करेंगे तो ओमेगा कम होगा, लीनियर बढ़ेगी. अगर ट्रांसलेट करेंगे तो लीनियर कम होगी और ओमेगा बढ़ेगा. एक्सक्यूज मी हाँ जी. सर, जो आज आपने न्यूमेरिकल वो एमसीक्यूज भेजे थे उनमें से दो एमसीक्यूज में डाउट था. उस दो बाकी हो गए. भेजो मेरे को जो सोल्यूशन किए हैं आपने उन दो क्वेश्चंस के. सर वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया उनको सारे भेजने हैं? नहीं जो नहीं निकले बस वो भेज दो. ओके सर. उसमें सर सर संडे टेस्ट है. संडे टेस्ट है. एमसीक्यूज का होगा जितना अब तक रोटेशन हो गया उसका. सेंटर ऑफ मास लेकर अब तक. हाँ, सेंटर ऑफ मास का भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी. टॉक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा अभी. टॉक एंगुलर मोमेंटम और इसकी प्रैक्टिस नहीं है आपको.